لك الحمد يا الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العلي العظيم. بلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پڑھیے درود پاک. اللهم صل على سيدنا وسندنا وشفيعنا ونبينا ووكيلنا وكفيلنا ومولانا وملجانا بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. طبیعت تو اب یہ چاہ رہی تھی کہ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے، کیونکہ دو تقریریں بڑی کامیاب، روح افزا، اطمینان بخش ہو چکی ہیں، مگر پھر وہی ہے کہ یہ عام محفل نہیں ہے، یہ غوث اعظم کے نام کی محفل ہے. سبحان اللہ. کیا ہے؟ بہت سمجھانے کی کوشش کیا ہمارے پیشرو مقررین نے، مگر ایسا جمود اور تعطل طاری ہے کہ لگتا ہے جیسے گھی میں سیت گر گئی ہے نا. خیر، میرا اپنا مشغلہ نہیں ہے، مگر جو باتیں دل پہ لگتی ہیں وہ کہہ دیا کرتا ہوں، کیونکہ میں دوسری جگہ نہیں بیٹھا ہوں، اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، اپنے لوگوں میں. اگر یہاں نہیں کہوں گا تو آگے کہنے کا حق زیادہ نہیں رہے گا. غوث اعظم کی ذات پاک کے تعلق سے آپ حضرات نے بہت کچھ سنا، اور دل یہی کہہ رہا تھا کہ ذکر غوث ہوتا رہے، ہم سنتے رہے. آخر کار غوث اعظم ہے کون؟ دور نہ جائیے، بریلی شریف چلتے ہیں. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ہی سے نہیں بلکہ ان کے ایک بڑے خاص مرید اور خلیفہ علماء جانتے ہیں، جن کا نام جمیل الرحمن بریلوی ہے. وہ کہتے ہیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ، اگر آپ لوگوں پر بھی ہے تو سب لوگ کہہ دو غوث اعظم کا. ہمیں تقریر نہیں کامیاب کرا، الحمدللہ ثم الحمدللہ. رب کی نعمت اور عطا سے کہتا ہوں، میری تقریر جاہلوں میں نہیں اہل علم میں ہوا کرتی ہے. اسی لحاظ سے میں اسی طریقے کے تقریر کا عادی ہو گیا. مگر آپ اگر اپنے اوپر چاہتے ہو کہ آج فیضان ہو واقعی غوث اعظم کا، تو پکارو نام غوث اعظم. کتنا بڑا وظیفہ ہے نام غوث اعظم، اس کو ہم اور آپ نہیں جانتے. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کچھوچھا مقدسہ کے بزرگ، اور آپ حضرات سبھی جانتے ہیں جو لوگ یوٹیوب چلاتے ہیں، علماء کی تقریریں سنتے ہیں، اہل سنت کے دو بہت بڑے عالم کچھوچھا کی سرزمین سے پائے جاتے ہیں. ایک کو اہل علم زیادہ جانتے ہیں اور دوسرے کو عام حضرات جو تقریروں سے شوق رکھتے ہوئے خوب پہچانتے ہیں. ایک کا نام ہے مدنی میاں، دوسرے کا نام ہے ہاشمی میاں. کیا نام ہے؟ ان کے باپ کا نام سید محمد میاں تھا، لقب محدث اعظم ہند تھا. کیا تھا؟ یہ جس وقت محدث صورتی کی بارگاہ میں پیلی بھیت شریف پڑھتے تھے تو علم کا ایسا غلغلہ ان کے ذہن و فکر میں سوار ہوا کہ میں تو اتنا پڑھ لیا ہوں کہ ہندوستان کیا
कई ममालिक में मेरे पाए का कोई आलिम है ही नहीं। ये होता है इल्मी रोग कुछ लोगों में, जब तक बड़ों का सामना नहीं होता। जैसे मेंढक जो कुएं के अंदर होता ना, माज़अल्लाह में वहां की मिसाल नहीं दे रहा, सिर्फ समझाने के लिए वाले रसूल हैं, सिर्फ एक बात बताने के लिए कि मेंढक सोचता है बस दुनिया इतनी ही बड़ी है, और सोचता है पूरी दुनिया का बादशाह मैं ही हूं। मगर जब निकलकर बाहर आता है फिर पता चलता है कि दुनिया कहां से कहां तक है। तो ये मुहद्दिस आज़म इल्म का इतना गलगला सवार हुआ, ये फरमाते हैं कि मैं कहता था कि इस वक्त मेरे पाए का कोई आलिम ही नहीं है, मगर जब उनके उस्ताद मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उन्हें आला हजरत की बारगाह में फतवा नवेसी के लिए भेजा, इफ्ता सीखने के लिए, तो फरमाते हैं कि मैंने जब आला हजरत इमाम अहमद रजा के इल्म को देखा तो मैं ये कहने पर मजबूर हो गया कि आला हजरत एक भारी भरकम पहाड़ है, और उस पहाड़ के नीचे जो एक चींटी रेंगती है वो मेरी हैसियत है। आप पहचानो आला हजरत, आला हजरत कौन है। तो जब ये गए पढ़ने के लिए तो आला हजरत ने फरमाया, शहजादे ये सब कुछ तुम्हारे नाना जान सरकार गौसे आजम का दिया हुआ है, यहाँ जो कुछ है वो सब तुम्हारा है। सरकार आला हजरत ने शीरनी मंगाया फातिहे के लिए और गौसे आजम के नाम पर नियाज दी, और एक साहब को हुक्म दिया कि आप ये शीरनी लोगों में तकसीम कर दें। उन्होंने तकसीम करना शुरू कर दिया तो कहीं एक जर्रा शीरनी का नीचे फर्श पर गिर गया। गौर करना, मकामे गौसे आजम है क्या, वाला हजरत से पूछो। तो फरमाते हैं कि वो बेतवज्जही में उनसे कोई टुकड़ा शीरनी का नीचे गिर गया। वो लोगों में बांटते रहे, तकसीम करते रहे। आला हजरत की नजर पड़ी, आला हजरत तख्त पर बैठे हुए थे, लोग नीचे थे। आला हजरत घुटने के बल उठते हैं, लोगों ने देखा, हैरत में आ गए, हजरत उठ रहे हैं, लगता कोई हाजत है, कहीं जाना है। सारा मजमा खड़ा हो गया। आला हजरत ने फरमाया, नहीं नहीं बैठो। आला हजरत वहां पहुंचते हैं जहां पर वो शीरनी गिरी थी, और हाथ से नहीं बल्कि अपने दोनों घुटने को जमीन पर टेक देते हैं, और टेकने के बाद अपनी जुबान को बाहर निकालते हैं। उस फर्श से गौसे आजम का तबर्रुक जो गिरा हुआ था अपने मुंह में ले लेते। ये अदब किसके पास होगा। फिर यहां से ये भी पता चला कि आला हजरत गौसे आजम के कितने बड़े आशिक थे, और ये भी मालूम हो गया कि गौसे आजम का मकाम कितना बुलंद वाला है कि वक्त का मुजद्दिद हाथ से नहीं, उनकी जात नहीं है वहां पर, उनके नाम का तबर्रुक है जो नीचे गिर गया है, अपनी होंठ से और जुबान से उठा रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये गौसे आजम है। तो आप किसी आज आम महफिल में नहीं बैठे, वाकई हक तो ये था कि आप किसी महफिल में आते, मगर खास तौर पर आज के महफिल में हर एक को बावजू रहना चाहिए था, वजू के साथ बैठता और फिर गौसे आजम का फैजान देखता, क्योंकि फैजान आंखों से नहीं दिखाई देती है, ये दिल की नजर से देखा जाता है। अगर दिल साफ हो जाए, दिल सुथरा हो जाए, तो फिर ये बुजुर्गों का फैजान नजर आने लगता है। अगर दिल गंदा हो तो सब बेकार है। आप लोगों ने गौसे आजम के नाम की महफिल को सजाया, उलमा ने बड़ी अच्छी तकरीरें की, नात खां और मनकबत नवाजों ने मनकबत से नवाजा, नात खानी पेश की है और दिल बड़ा मसरूर हुआ है। मगर याद रखो, जिस गौस की महफिल को सजाए बैठे हो, उस गौस का फरमान ये है कि जो कोई बेनमाजी हो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। अब गौर करना कि आप कितने बड़े गौसे आजम के मान, मगर साथ साथ में ये भी कहूंगा
बगैर जाने समझे किसी पर एतराज भी नहीं करना कि फला नमाजी नहीं, फला नहीं। बात कभी भी करो जनरल करो, शरीयत का हुक्म है। शरीयत का हुक्म यह है कि जब आप फतवा पूछो एक मुफ्ती से, तो वहाँ या लिख करके ना पूछो कि मोहम्मद जाकिर ने क्या किया, मोहम्मद सलमान ने क्या किया, मोहम्मद फहीम ने क्या किया, बल्कि वहाँ नाम जैद बकर का लिख दो और ये कहो कि जैद बकर ने ऐसा ऐसा किया, उसके लिए शरीयत का क्या हुक्म है। क्योंकि आप नाम के साथ किसी मुसलमान को जलील नहीं कर सकते हो, है वो गुनहगार जरूर, मगर आप जलील नहीं कर सकते हो। अगर आपको पैगाम देना है समाजी तौर पर दो, सतही तौर पर उस पैगाम को पहुंचाओ। हो सकता है कहीं आप बदगुमानी के शिकार हो जाए, कोई ऐसा हो जो नमाजी हो, तुम्हारी नजर उससे ना मिलती हो, तुम बे नमाजी कह रहे हो, कहीं तुम्हारे अंदर आरे मजल्लत का तोप न डाल दिया जाए। इसलिए अगर वाकई यकीन के साथ मालूम है कि फला वाकई नमाजी नहीं है तो बेशक कह सकते हो, मगर आम तौर पर नाम बनाम फला नमाजी नहीं, फला नहीं, फला नहीं, तुम्हें क्या मालूम तो नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। हाँ, जनरल तौर पर सबको दावत देने की जरूरत है और तमाम मुसलमानों को गौर करने की जरूरत है कि जिस गौत की महफिल सजाए बैठे हो, उसी गौत पाक का फरमान है कि बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में न दफन किया जाए। बात कब्रिस्तान की आ गई है तो बात सुनते चलो। उलमा फरमाते इसमें इल्लत क्या है, हुक्म क्या है, मालूम है आपको? जब इंसान दुनिया से चला जाता है, हमारा मामला तो ये है, जिनके पास इल्म नहीं है वो समझते हैं कि जो गया वो खत्म हो गया, मौत ने उसे मिटा दिया, मौत ने उसे फना कर दिया। मगर नहीं मुसलमान, हम मुसलमान हैं, मौत फना नहीं करती है, मौत मिटाती नहीं है, बल्कि मौत तो एक दरवाजा है जो एक दुनिया से तुम्हें दूसरी दुनिया में दाखिल कर देती है। अगर इसकी तफसील पर आऊंगा बात लंबी हो जाएगी, मगर एक बात सुनते चलो जहन में आ गई कि हम इससे पहले कहाँ थे? आलम अरवाह में हम ही थे ना, कोई दूसरा तो नहीं था। फिर विलादत के जरिए से हम आलम अजसाम में आ गए। जब हम वहां थे तो वहां नेकों का कुर्ब था, बुजुर्गों की रूहें थी, फरिश्तों की झुरमुट थी, हम बड़े अच्छे थे। जब शिकमे मादर के जरिए से हम दुनिया में आए, बजरिए विलादत दुनिया में आए हम, तो वो नेक सोहबतें जब हमसे छूटी तो बच्चा रोना शुरू कर दिया। आते किस दुनिया हम आ गए? अब आलम अजसाम में आया, जिसकी जिंदगी बज़ाहिर जितनी थी, 1 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटा, 15 दिन, महीना, 10 महीना, साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 120 साल, जितनी जिंदगी थी वो रहा। फिर मौत फिर दरवाजा बन करके आ गई और आलम अरवाह से हमारा सफर शुरू हुआ था। आलम अजसाम में आ गए, वहां मौत के जरिए से आलम बरज़ख में गए। वहां भी अल्लाह जब तक चाहेगा इंसान कब्र में रहेगा और उसके बाद आलम क़यामत कायम हो जाएगा। उसके बाद जन्नत और दोज़ख का मामला सामने आ जाएगा। जो जिस लायक होगा, जो जिसका मुस्तहिक होगा वहां पहुंचेगा। मगर मैं बताना ये चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि मौत ने मिटा दिया, मौत ने फना कर दिया, मौत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। नहीं नहीं, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है कि आप सबको मालूम है कि जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, उससे पहले आपके वालिद हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो गया
اور جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر پاک تقریباً 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، اس کے بعد میرے آقا نے رب سے التجا کی، میرے مولا میں اپنے والدین کی قبر پر جانا چاہتا ہوں اور ان کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ رب نے منع فرما دیا۔ اچھا، یہ موقع جب آیا نا تو وہاں بھی بغلے بجانے لگے۔ آپ دیکھا، اسی لیے ہم کہتے قبر پر نہ جایا کرو۔ دیکھو اللہ نے نبی کو منع کر دیا، مگر ان جاہلوں نے صرف ایک حدیث پڑھی، سرکار کی دوسری حدیث پاک نہیں پڑھی کہ وہیں رب نے حکم دیا محبوب والدین کی قبر پر تو جاؤ مگر وہاں دعا نہ کرنا۔ پھر وہابیوں کو موقع ملا، کہا دیکھو یہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو دعا کرنے سے روک دیا اور تم لوگ قبر پہ جا کر کے دعا کرتے ہو، یہ شرک کرتے ہو، ناجائز کرتے، حرام کرتے۔ ہمارے سنی کبھی ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی پان کھا رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، مستی میں ہیں، اور وہاں بھی بکتا چلا جا رہے، سنتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ انہیں علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، اور ان کا ہر بچہ ان ساری چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے بچوں کا معاملہ یہ ہے کہ نماز نہیں سیکھتے، عقیدہ کیا سیکھیں گے؟ یہ عقیدے کے مسئلے پر کیا بحث کریں گے؟ بہرکیف علماء نے فرمایا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے اجازت اگر جانے کی دی تو اگر میرے آقا کے والدین اگر کافر ہوتے تو کافروں کے قبر پر جانے سے شریعت نے منع فرمایا ہے۔ رب کیسے حکم دیتا کہ اے نبی تم اپنے والدین کافروں کی قبر پر جاؤ؟ ہرگز نہیں، بلکہ والدین مسلمان ہیں۔ اور جہاں تک رہی دعا سے منع کرنے کی بات، وجہ یہ ہے کہ اگر سرکار دعا کرتے اور یہ کہتے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما دے، دنیا یہی کہتی کہ نبی جن کے پشت میں رہے، نبی جن کے شکم میں رہے، اگر ان کی بخشش نبی نہیں کرا سکے تو اور امتیوں کی بخشش کیا کرائیں گے؟ رب نے منع کر دیا محبوب تمہارے والدین بخشائے ہوئے ہیں، انہیں دعا کی ضرورت نہیں ہے، مگر تم قبر پر جاؤ اپنے والدین کو سلام کرو۔ یہی نہیں، مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، بالخصوص آج کی بات نہیں کر رہا، علماء جانتے ہیں آج سے تقریباً 600 سال پہلے جن بزرگ کا زمانہ گزرا ہے، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، آج ان کی کتاب جلالین شریف جب تک کوئی مولوی پڑھ نہ لے اس وقت تک کہ وہ مولوی نہیں ہو سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ایسے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ایسے نبی کے عاشق ہیں کہ سوتے میں نہیں، روایتوں میں آیا ہے کہ 72 مرتبہ سے زیادہ جاگتے ہوئے اللہ کے پیارے حبیب کی زیارت فرمائی۔ اس شان کے اللہ کے ولی وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے جب حکم دیا تو اللہ رب العزت سے میرے آقا نے کہا ہے میرے رب میں چاہتا ہوں کہ تو میرے ماں باپ کو دوبارہ زندہ کر دے اور وہ میری زیارت کر لیں اور کلمہ پڑھ کر کے پھر قبر میں جائیں۔ اللہ رب العزت نے ایسا ہی کیا، میرے سرکار اپنے والدین کے قبر پر گئے، آواز دیا، قبر شق ہوتی ہے، والدہ بھی باہر ہیں، والد بھی تشریف لاتے ہیں، میرے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور پھر کلمہ پڑھنے کے بعد قبر میں جاتے ہیں۔ یہ نبی کا اختیار ہے۔ خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی، میں قبر پر آ گیا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قبر کا معاملہ ختم، مگر یاد رکھو حدیث شریف میں ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اب نہ وہ نماز پڑھ سکتا، نہ روزہ رکھ سکتا، نہ حج کر سکتا، نہ زکوٰۃ دے سکتا، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے مل میت فی القبر الا
کالغریق المتغوث، یعنی جو مردہ قبر میں ہے، جو انسان قبر میں ہے، وہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی ڈوب رہا ہو اور ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے، وہ ہاتھ پیر مارتا ہے، کہیں کوئی تنکا آ جائے، کہیں کوئی گھاس آ جائے جس سے میں ڈوبنے سے بچ جاؤں، تو میرے آقا علیہ السلام مثال دے کر فرماتے ہیں کہ ویسے ہی قبر میں جو مردہ پڑا ہوا ہے، ینتظر دعوتن، انتظار کرتا ہے دعا کا۔ کیا کرتا ہے؟ انتظار کرتا ہے دعا کا۔ کس بات کا انتظار کرتا ہے؟ دعا کا انتظار کرتا ہے۔ اور کس کی دعا کا؟ وہ بھی میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لِأَبٍ او امٍ او اخٍ او صدیق لہو، یعنی وہ انتظار کرتا ہے اپنے باپ کی دعا کا، اپنی ماں کی دعا کا، اپنے بھائی کی دعا کا، اپنے دوست کی دعا کا۔ اللہ اکبر! مطلب میرے آقا کے فرمانے کا یہ ہے کہ اگر بیٹا دنیا سے جا چکا ہے تو باپ کی دعا کا انتظار کر رہا ہے، ماں کی دعا کا انتظار کر رہا ہے۔ اگر ماں دنیا سے چلی گئی ہے تو بیٹے کے دعا کا انتظار کرتی ہے، اگر بیٹی دنیا سے چلی گئی ہے اپنے ماں باپ کی دعاؤں کا انتظار کرتی ہے۔ اب سنو، میرے آقا علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ صرف انتظار ہی نہیں کرتی ہے، اگر وہ دعا انہیں جب پہنچتی ہے تو حشاش و بشاش ہو جاتے ہیں، وہاں وہ خوش ہوتے ہیں، لذت محسوس کرتے ہیں۔ اور کتنی لذت محسوس کرتے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک ملک کا خزانہ دے دیا جائے تو نہیں، یہاں تک کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر پوری دنیا کا خزانہ اٹھا کر کے اسے دے دیا جائے تو بھی اتنا خوش نہیں جتنی خوشی اسے قبر میں دعا کے پہنچنے سے ہوا کرتی ہے۔ آپ غور کرو، آج 10 بیگھہ زمین کسی کے پاس اچانک آ جائے کتنا خوش ہوگا؟ گاؤں کا پردھان ہو جائے، پھر دیکھو پھولے نہیں سماتا، آگے MP بن جائے، MLA بن جائے، حالانکہ بھی مالک نہیں ہوا، پورے راجاؤں کا زمانہ نہیں رہ گیا ہے۔ اگر ایک گاؤں کا مالک ہو گیا کتنی خوشی محسوس ہوگی۔ اچانک کہہ دیا جائے دوسرا گاؤں تیرے قبضے میں ہے، اور خوشی ہوگی۔ کہہ دو پورا ضلع بلرام پور تمہارے اختیار میں ہے، کتنا لذت محسوس کرے گا۔ تو یہ ایک ضلع کی بات نہیں، یہ فرمان میرے نبی کا ہے کہ ایک ملک نہیں، پورے ملک کے خزانے دے دیے جائیں تو بھی اتنا خوش نہیں ہوتا ہے اگر اس سے دعا پہنچ جائے تو جتنا وہ دعا سے خوش ہوا کرتا ہے۔ ہم نے اسی کو بھولا دیا ہے، ہم اسی کو بھول بیٹھے ہیں۔ ہم اپنے مردوں کو دفن کر کے آ گئے، کبھی ہم نے سوچا کہ ہمیں ان کی قبر پر جانا چاہیے؟ علماء بیٹھے، پوچھئے، اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے اردو میں جس کا نام ہے روحوں کی دنیا۔ اعلیٰ حضرت دلائل کی روشنی میں ثابت فرمایا ہے کہ جب کوئی عزیز قریب قبر پر جاتا ہے تو مردہ اسے پہچانتا ہے، اور جب یہ اسے سلام کرتا ہے تو مردہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس مردے کی آواز کو جنات اور انسان کے علاوہ دنیا کی تمام چیزیں سنتی ہیں۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ میرا نہیں، مولانا شیر علی صاحب کا نہیں ہے، مولانا جعفر کا نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے، مفتی اعظم کا نہیں ہے، بلکہ جن کے لائے ہوئے شریعت پر ہمارا ایمان ہے، جنہوں نے کہا خدا ایک، ہم نے خدا کو ایک مان لیا۔ جس نبی نے بتایا قرآن حق ہے، ہم نے قرآن کو حق مان لیا۔ جس نبی نے بتایا قیامت حق ہے، ہم نے قیامت کو حق مان لیا۔ جس نبی نے بتایا میں اللہ کا آخری رسول ہوں، ہم نے ان کو رسول مان لیا۔ اسی نبی نے فرمایا ہے کہ وہ سب کی آواز سنتا ہے مردہ، مردے کی آواز سب سنتے ہیں جواب دیتا ہے۔ تو اگر نہیں سن سکتے تو کون؟ صرف جنات اور انسان نہیں سنتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام قبر پر گئے بھی، اور یہاں تک کہ ابتداء اسلام کا جب دور تھا وہاں بھی اسی حدیث کو لے کر ناچتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے آ کر بخاری حدیث کھول دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر پڑھے عربی تو پڑھ لو، دیکھو نبی نے فرمایا ہے کہ میں نے تم لوگوں کو قبروں کی زیارت سے روکا،
तो वो इब्तिदाई इस्लाम का ज़माना था, वहाँ मुसलमानों की कब्रें नहीं थी, मुशरिकों की कब्रें थी। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमा दिया। मगर जब मेरे नबी के चचा हज़रत हमज़ा शहीद हो गए और दूसरे सहाबे किराम का इंतकाल हो गया, उनको दफन कर दिया गया, तो मेरे नबी ने फरमाया कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर अला फज़रूहा फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आख़िरह। बुखारी शरीफ जिल्द सानी की हदीस पाक है। मेरे नबी ने फरमाया लोगों और मेरे सहाबा, मैंने तुम लोगों को अगले ज़माने में कुन्तु नहैतुकुम, माज़ी बईद का सेगा है, रोक दिया था, दूर के ज़माने में मना कर दिया था कब्रों की जियारत करने से। अला फज़रूहा, खबरदार खबरदार, अब कब्रों की जियारत करो। फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़ी दुनिया व तुज़क्किरुल आख़िरह, क्योंकि कब्रों की जियारत तुम्हें दुनिया में परहेजगार बनाएगी और आखिरत की याद दिला देगी। मेरे नबी तो नुस्खा बता रहे हैं। वहाँ भी कहता कब्र पर जाना ही शिरक है, मज़ार पर जाना ही हराम है। बहरे कैफ ये ज़मीनी बात थी, बात तो पूरी हो गई। अगर इसी मौजू पर गुफ्तगू करता तो काफ़ी बात हो जाती, मगर बात है गौसे आज़म की। बस 10 मिनट और बर्दाश्त करने, बर्दाश्त क्या आप करेंगे, गौसे आज़म की महफिल है ये, इसमें कोई माजरत नहीं करता। ये गौसे पाक की महफिल है और गौसे पाक की महफिल में माजरत करूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। जिसे गौसे आज़म चाहेंगे बैठेगा, जिसे जाना होगा जाएगा। ये मेरे घर की महफिल नहीं है, बड़े पीर के नाम की महफिल है, जिनके नाम से मुसीबतें टलती हैं। तो सैयदी सरकार आला हजरत के खलीफा अल्लामा जमील फरमाते हैं, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। क्या है, मैं स्मरण नहीं करूँ, सिर्फ गौसे आज़म कह दिया करो, बरकतें लेना है तो। हमें दोनों जहां में है सहारा, चाहे फरिश्ते पूछ रोकते क्यों हो, मुझे जन्नत में जाने से। बड़ी प्यारी बात कही। जब मैदान क़यामत होगा, जन्नतियों की लाइन होगी और जन्नती जन्नत की तरफ जा रहे होंगे, तो अल्लाह के हुक्म ही से कुछ फरिश्ते जाएंगे और कहेंगे कहाँ चले हो, किस तरफ जा रहे हो। तो वो कहेंगे आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले, कहा नहीं कोई परवाना है जाने का। अरे भाई किसी हाल में जाना होता ना बड़े, टिकट चाहिए, जन्नत सबसे बड़ा महल है आखिरत का, तो वहां जाने के लिए क्या परवाना है। तो अल्लामा जमील फरमाते हैं कि फरिश्ते क्या कहेंगे, फरिश्ते रोकते क्यों हो मुझे, किससे, ये गौसे आजम के जो गुलाम होंगे, हम जैसे गुनहगार होंगे, वो जन्नत की तरफ जा रहे होंगे, फरिश्ते आकर के रोकेंगे, हम ही लोग कहेंगे फरिश्ते रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से। ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आजम का। अब जब दामन गौसे आजम हाथ में होगा, फरिश्ते हट जाएंगे मुस्कुराते हुए कि ये तो गौस के दीवाने हैं, गौस के चाहने वाले हैं। और गौसे आजम का मकाम मैं क्या बयान कर सकता हूँ, मैं तो उस दर का आदना कुत्ता और भिखारी हूँ, उस लायक भी नहीं हूँ कि उनके दरबार का भिखारी बन सकूं। ये उनका करम है कि नवाज देते हैं। गौसे आजम वो गौसे आजम हैं। आपके बचपन का ज़माना है और हाजियों का एक काफिला चला हज करने के लिए। आज हवाई जहाज का ज़माना नहीं था, रेलवे का ज़माना नहीं था, लोग पैदल सफ़र किया करते थे और गर्दें उड़ा करती थी। जब लोग काफी तादाद में हुआ करते थे, लोग दूर से काफिले को पहचान लेते, कोई काफिला आ रहा है। सरकार गौसे आजम के बचपन का ज़माना है और काफिला चला हज करने के लिए। गौसे आजम भी भेजने के लिए गए, हाजियों से मुलाकात की, अपनी वालदा के पास आए, आंखों में आंसू हैं। अब्दुल कादिर जिलानी से वालदा फरमाते, बेटा अब्दुल कादिर क्यों परेशान हो, क्या मामला है। अर्ज करते, अम्मी जान आज हाजियों का काफिला
खुदा के मुकद्दस घर जा रहा है और मेरे नाना जान के रोजे अतहर पर जाएगा। आप भी मुझे इजाजत दे दो कि मैं उन हाजियों के साथ अपने नाना जान के रोजे पर मदीने मुनव्वरा हाजिरी दे लूं। वालदा ने कहा, बेटा अभी तुम बच्चे हो, नाबालिग हो, छोटे हो, रास्ता बड़ा दुश्वार है, बड़ा कठिन है, पैदल का सफर है, कोई सवारी का खासा इंतजाम नहीं है। बेटा तुम जाओगे मगर बड़े होकर के जाना। मगर वारे गौसे आजम बचपन का आलम है। सरकार गौसे आजम अपने जमाने के मुताबिक उस जमाने के अंदर जो घरों का छत था उस छत पे खड़े हो जाते हैं, हसरत भरी निगाहों से उस काफिले को देखते हैं कि हाजियों का काफिला जा रहा है। वहां पहुंच गया है, वहां पहुंच गया है। आंखों से जब काफिला ओझल होता है एकाएक गौसे आजम रोना शुरू कर देते हैं और आंखें बंद होती हैं तो नजारा क्या होता है, सारी दुनिया काबे की तरफ जा रही है। रब ने काबे को हुक्म दे दिया, काबा अब तो अब्दुल कादिर की बारगाह में चला जा। अल्लाहु अकबर। और इधर गौसे अपने छत पर है, लोग खाने काबा का तवाफ करते हैं, काबा अब्दुल कादिर का तवाफ कर रहा है। इसी को मेरे इमाम आला हजरत ने फरमाया, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। अल्लाह अकबर। क्या शान है मेरे गौसे आजम की। आओ आला हजरत सरकार से पूछो। बस एक बात और सुन लो, बात गौसे आजम की है, दिल में बहुत सारी बातें हैं, कहाँ कहाँ तक बयान करूँ क्या कि छोड़ूं। मगर देखो मेरे गौस की बारगाह में एक चोर आ गया। अभी हजरत ने चोर का वाकया सुनाया ना, वो एक अलग वाकया था, वो भी हक था। ये दूसरे चोर का मामला है। मगर ये चोर कैसा आया बड़े पीर की बारगाह में। क्या हुजूर, हमारी नजरें देख रही हैं कि बगदाद के अंदर जो बड़े बड़े डाकू थे अल्लाह के वली हो गए, जो जेब कतरे थे वो कुतुब बना दिया आपने। सरकार मैं भी आया हूँ आपसे मुरीद होने के लिए। तो गौसे आजम ने हाथ बढ़ा दिया, मुरीद हो जाओ। उसने भी हाथ बढ़ा दिया, मगर थोड़ी देर के अभी हाथ बढ़ाया तो पीछे खींच लिया। गौसे आजम ने फरमाया तू मुरीद होने के लिए आया था, हाथ खींच दिया। कहा दो शर्त है। कहा क्या शर्त है। कहा हजरत मैं पेशे से चोर हूं, मैं पेशे से चोर। तो आप ये शर्त मेरी मंजूर करें कि मैं चोरी नहीं छोड़ूंगा। दूसरी बात, मैं बेनमाजी हूँ मुसलमान मगर हूँ बेनमाजी। आप मुझे नमाज की पाबंदी नहीं कराएंगे, कब मुझसे कराएंगे। अगर ये दो शर्तें मंजूर हैं तो मैं आपसे मुरीद हो जाता हूँ। गौसे आजम ने फरमाया ये दोनों शर्तें शरीयत के खिलाफ हैं। आज का कोई पीर होता इसे दीन से गरज नहीं, सिर्फ ये होता कि जेब भरना है, वो कहता ठीक है हफ्ते हफ्ते में जेब भरते रहना, तेरी नमाज भी माफ करा दूंगा माज़अल्लाह। अब सोचो गौसे आजम अल्लाह के वली, वलियों के सरदार, शहनशाह बगदाद, कुतुबुल अख्ताब, फरदुल अफराद, जिनकी शान बेमिसाल, जब उनसे कहा तो गौसे आजम ने फरमाया ये दोनों शर्तें मंजूर नहीं, शरीयत के खिलाफ है। वो भी जिद में आ गया, हुजूर मुरीद होना है। आपने लाखों उचक्कों, डाकुओं, कमीनों को अपनी नजर विलायत से मकाम रफी पर पहुंचा दिया और मैं दो ही शर्तें तो लगा रहा हूं। गौसे आजम ने फरमाया तेरी मुझे दोनों शर्तें मंजूर नहीं, क्योंकि ये शरीयत के खिलाफ है। हाँ याद रख, मेरी एक शर्त है। कहा हुजूर क्या शर्त है। आप मुरीद कर ले क्या, आप 1000 शर्तें रखें, मैं आपकी 1000 शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। मुसलमानों गौर करना, सरकार गौसे आजम ने फरमाया शर्त यह है कि जब नमाज का वक्त हो जाए तो उस वक्त अजान देना। फजर की भी अजान, ज़ोहर की भी अजान, असर की भी अजान, मगरिब की भी अजान, इशा की भी अजान, 5 अजानें देनी है। मुझे तेरी शर्त मंजूर नहीं, मगर अगर तू ये शर्त कबूल करता है मेरी तो मैं तुझे मुरीद कर लेता हूँ। कहा हुजूर बिल्कुल मुरीद कर ले, इसमें कोताही नहीं करूँगा, अजान दे दिया करूँगा। मान गया, हजरत ने मुरीद किया, घर पर गया, मगरिब का वक्त हो गया, शाम में अजान देना शुरू कर दिया घर के आंगन में। और अजान देने के बाद चारपाई पर फैल गया।
ईशा का वक्त आ गया, फिर अजान दिया, फिर चारपाई पर लेट गया। फिर फजर का वक्त आ गया, फिर अजान दिया, फिर चारपाई पर लेट गया। बीवी ने कहा ये क्या मामला है, तू अजान दे रहा है, यहाँ मस्जिद के अंदर अजान हो रही है, करीब में वहां चले जाओ नमाज भी पढ़ लो, नमाज क्यों नहीं पढ़ते? उसने कहा बस तुम खामोश रहना, ये मेरा काम है, ये मेरा मामला है, मैंने गौसे आजम से वादा कर लिया है, बड़े पीर से मैंने वादा की से अजान दे रहा हूँ। जब 4 दिन हो गए, उसका पेशा ही चोरी का था, घर में खर्च खत्म हो गए। बीवी ने कहा कहो क्या करोगे, जाओ कहीं चोरी करो, लाओ कुछ माल, बच्चे खाएं पिए, कैसे गुजारा होगा? बीवी को मालूम था ये चोरी है, चोरी पेशा है इसका, डाका जनी। कहा अच्छा मैं यही तो सोच रहा हूँ कि किस वक्त निकलूं कि अजान का वक्त ना हो जाए, कि अजान ना देना पड़े। तो बीवी ने कहा उसमें क्या बड़ी बात है, ईशा की अजान देकर के निकल जाओ ताक में, ईशा से फजर तक बड़ा लंबा वक्त हुआ करता है, उसमें अपनी चोरी करके बाहर आ जाओगे, फिर अजान दे लेना। तो बात समझ में आ गई, कहा बात तो ठीक है। ये ईशा की अजान दिया और अपने मशगले के निकल पड़ा। ताड़ते हुए बगदाद के शहर में घूमता रहा। एक महल नजर आया, पीछे की जानिब से रस्सा डाल करके छलांग लगा दिया, पहुंच गया उस कमरे में जहां पर जेवरात थे, जहां पर मालो दौलत है। अब जेवर है, उजाला किया किसी तरीके से, उसके अंदर एक को तलाश करना शुरू किया। अब जेवर है, ये तो नहीं कि दाल चावल उठाया भरा रख के चल दिया, बड़े संभल संभल के रख रहा है, बड़े संभल संभल के बोरी में भर रहा है। मगर इतना वक्त हो गया उसे संभालते संभालते कि फजर का वक्त हो गया। अब जब फजर का वक्त हुआ तो याद आया कि मैंने बड़े पीर से वादा किया, अब क्या होगा? अल्लाहू अकबर। वो अब जो बोरा भर करके जेवर, सोने चांदी हीरे जवाहरात जो कुछ उसे मिले कंधे पर रखा, आंगन में आया, देखा सफेदी फैल रही है, अजान का वक्त हो गया, अजान देना वहीं शुरू कर दिया। और जब अजान देना शुरू कर दिया पूरे घर वाले जाग गए, इधर से भी उधर से सब आ गए। अब इसने देखा घर वाले जाग गए, कहा वैसा करता हूँ मैं 2 रकात नमाज पढ़ लेता हूँ। नियत बांध करके नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। कहा ये लोग वजू करने जब तक जाएंगे आगे पीछे, मैं बोरा लेकर निकल जाऊंगा। अब ये नमाज पढ़ ही रहा था कि इसने जब सलाम फेरा सुन्नत पढ़ के देखा तो एक लंबी सफ लगी हुई है मुक्तदियों की। उसमें एक बोला हुजूर तकबीर कहें। ये घबरा गया, कहा हुजूर हुजूर ना कहो, क्या तकबीर की बात करते हो? कहा नहीं नहीं हुजूर, अजान आपने बड़ी प्यारी दी और अल्लाह ने मेरे घर में एक वली को भेज दिया है जो फजर के वक्त हम सबको जगाया, ये मेरी मुकद्दर की बात है। तो कहा हुजूर वगैरह ना कहो, मैं तो एक चोर हूँ। अल्लाहू अकबर, कैसी मोहब्बत देखो, गौसे आजम के सदक़े में लोगों के दिलों में डाल दी अल्लाह ने कि लोग कहते हुजूर आप वली हैं, चोरी के बहाने से अपनी विलायत पर आप पर्दा डाल रहे। हम नहीं मानने वाले कि आप चोर हैं, क्योंकि जो चोर होगा वो अजान देगा। चोर अजान कहीं देता है, चोर नमाज पढ़ता है किसी के घर में। आप अपनी चोरी के बहाने से अपनी विलायत पर, अपनी पाकीज़गी पर, अपनी अच्छाई पर, अपनी सुथराई पर पर्दा डालना चाहते हैं। आज मुझे तो आपके पीछे ही नमाज पढ़नी। ये इधर कशमकश में है, कहता क्या करूं, अब क्या करूं। उधर गौसे आजम बाबू शेख ने अपने चंद मुरीदों के साथ तशरीफ फरमा मुस्कुरा पड़े। वो गौसे आजम जो रोशन ज़मीर है, जो फरमाते हैं कि मेरा मुरीद कोई मशरिक का रहने वाला हो और मैं मगरिब में हूँ, अगर वहां से मुझे आवाज देगा तो मगरिब में रह करके मैं उसकी फरियाद को पहुंच जाऊंगा। वो गौसे आजम उसी बगदाद में है, बाबू शेख में जलवागर है, कुछ मुरीदीन है। सरकार गौसे आजम मुस्कुरा पड़े। मुरीदों ने पूछा हुजूर ये मुस्कुराने की सबब क्या है, वजह क्या है, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? गौसे आजम ने फरमाया नहीं मालूम। वो फंस गया। कहा कौन? कहा वही जो तौबा करके आया था कि मैं नमाज जो है पाबंदी नहीं करूंगा, चोरी नहीं छोड़ूंगा, मगर अजान देता रहूंगा। तो मुरीदों ने कहा हुजूर निकाल लीजिए, आप तो गौसे वक्त हैं, आप बचा लीजिए। कहा निकाल तो लूंगा, मगर माजरा तो सुनो अभी क्या हो रहा है। वो वहां है, गौसे आजम बाबू शेख में है, सब कुछ मुलाहजा फरमा रहे, मुस्कुरा रहे हैं। अब जब लोगों ने कहा हुजूर जल्दी करें, मैं तकबीर कहता हूं जो चोर था, कहा आप नमाज पढ़ाएं
क्योंकि अभी सूरज निकल आएगा। उसने देखा इधर उधर का वाकई मामला तो गड़बड़ है, तो उसने कहा कोई बात नहीं है, अब मैं जो है नमाज पढ़ाई देता हूँ। कहा ठीक है, तकबीर कहो। उधर उन लोगों ने तकबीर कही, इसने नमाज अदा की, और नमाज अदा करने के बाद फिर लोगों ने कहा हुजूर दिल चाहता है कि आप अपने हाथों को एक प्याले में डाल दें, उसका पानी मेरे घर के लिए तबर्रुक हो जाए। हाथ को झड़का, कहा तुम लोग बेवकूफ हो, तुमको पता नहीं है कि मैं एक चोर हूँ? चोर? कहा नहीं नहीं, आप चोर नहीं है। चोर कैसे हो सकते हैं आप? दिल तो ये कहता है कि आपके तलों का धोन पिया जाए। आप तो अल्लाह के वली हैं, आप तो अल्लाह के प्यारे हैं, आप तो अल्लाह के चहीते हैं। कहा अच्छा, तुम्हें कोई दलील चाहिए मेरे चोर होने पर? कहा क्या दलील है आपके पास? तो जो थे गौसे आजम की मुरीद, अब मैं उन्हें चोर नहीं कहूँगा क्योंकि नमाज अदा कर लिया है और गौसे आजम की निगाहें करम पड़ गई है। उन्हें गौसे आजम ने अल्लाह का वली बना दिया। जैसा कि माशाअल्लाह ने फरमाया ना कि सरकार गौसे आजम सिर्फ वली ही नहीं बल्कि वली कर थे, नजर डाल दिया है तो विलायत अता फरमा दी है। अब वली जब बना दिया तो अब वो कहते हैं कि मेरी चोरी पर दलील चाहिए। वो देखो बोरे को खोलो। लोगों ने खोला, देखा हीरे हैं, जवाहरात हैं, चीजें हैं, सामान हैं। कहा पहचानो किसके घर के हैं? कहा ये सब तो मेरे ही घर के हैं। तो कहा बताओ इससे बड़ी और दलील क्या चाहिए कि मैं चोर हूं कि नहीं हूं? कहा नहीं नहीं हजरत, ये सब ना बताइए आप, बिल्कुल नहीं। ये तो आपने इसलिए इकट्ठा कर ली ताकि आपकी विलायत पर पर्दा पड़ा रहे, आपको कोई जान न सके कि आप कितने बड़े वली हैं। ऐसा नहीं हो सकता। वही गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाथ जोड़ करके वो जो बुजुर्ग थे, जो भी चोरी का पेशा कर रहे थे, हाथ को बांधा और गौसे आजम के घर के सामने दूर ही से हाथ को फैलाया। उसके बाद यो हाथ किया, ऐ गौस तुझे मान गया, अब्दुल कादिर मैं तुझे मान गया, अब्दुल कादिर मैं तुझे मान गया। तेरा इतना तसर्रुफ है, तूने अजान का वादा ले लिया, तूने नमाजी बना दिया। अगर मैंने एक वक्त की नमाज अदा की है तो पूरे घर वाले ताजीम के लिए खड़े हो गए। काश मैं 5 वक्त नमाजी बन जाऊंगा, पूरे मोहल्ले के लोग मेरी इज्जत करेंगे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल से वो नमाजी ही नहीं बने, गाजी ही नहीं बने, कुरान के कारी ही नहीं बने, बल्कि अल्लाह के वली बन गए। ये गौसे आजम की शान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको शहनशाह बगदाद के साये में रखे और उन्हीं की मोहब्बत में जिलाए और उन्हीं के लाए हुए तरीके पर कामजन रखे। आखिरी बात 2-3 मिनट की, मेरे सरकार आला हजरत सरकार मुफ्ती आज़म हिंद सरकार हुजूर ताज शरिया, ये कौन है? गौसे आजम के नाइब हैं। गौसे आजम के आज बहुत सारे लोग कहा करते शिकायत कि क्या करें, किसको अच्छा कहें किसको बुरा कहें, इधर भी कुरान पढ़ते उधर भी कुरान पढ़ रहे हैं। वो लोग भी अल्लाह और रसूल का नाम ले रहे हैं, ये लोग भी अल्लाह और रसूल का नाम ले रहे हैं। हम किसको अच्छा समझ पाए? मगर बात वही दुनियावी तौर पर एक मिसाल में देकर आपको बताऊं। कभी कभी होता है ना, जिसके चंद बेटे होते हैं तो लोग हम सुनते ही देखते कहते हैं इसका फला बेटा बिल्कुल बाप पर गया हुआ है। जब दूसरे बेटे के बारे वो कैसा है तो कहते छोड़ो तो बड़ा कमीना है। बोलते कि नहीं बोलते? तो होता यह है कि अगर 3-4 बेटे हों तो कोई कोई बेटा बाप के नक्शे कदम पर जाता है, सब नहीं जाते। तो बेटे तो सभी कहलाते हैं। तो ऐसे कुरान पढ़ने वाले बहुत हैं, नमाज पढ़ने वाले बहुत हैं, हज करने वाले बहुत हैं, ज़कात देने वाले बहुत हैं, मगर गौसे आज़म के तरीके पर सभी नहीं होते हैं। जिन पर अल्लाह का खास फजल हुआ करता है वो गौसे आज़म के तरीके पर हुआ करते हैं। तो सरकार आला हजरत गौसे आज़म के मजहर और नाइब थे। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद गौसे आज़म के नाइब और मजहर थे। सरकार ताज शरिया सरकार गौसे आज़म के नाइब और मजहर थे। और आला हजरत कैसे मजहर हैं? अभी एक आलिम दुनिया में बहयात है, गोंडी बम्बई के अंदर एक मदीना मस्जिद है। मेरी उनसे बारहा की मुलाकात, और जब मैं जाता हूँ तो उन्हीं के पास ठहरता हूँ बम्बई में। मौलाना क्या नाम, यूनुस साहब,
वो बरेली शरीफ पढ़ते थे, अब तो मुझसे बूढ़े हो गए, मुझसे काफ़ी बूढ़े हैं, उनका हाथ पैर भी काम नहीं कर रहा है। उनका बयान है कि जब हुजूर ताजुश्शरिया के बड़े भाई रैहान मिल्लत रैहान रज़ा का इंतकाल हुआ, बात बड़ी लंबी है मगर मुख्तसर कर रहा हूँ, रमज़ान शरीफ में, तो उस वक्त आला हजरत की बारगाह में जगह की तंगी थी, क्योंकि मुफ्ती आज़म का इंतकाल हो चुका था, हुज्जतुल इस्लाम का भी इंतकाल हो चुका था, और कुछ माई साहबा भी इंतकाल कर चुकी थी, सबकी कब्र इकट्ठा थी, तो गुंजाइश नहीं थी। कमेटी वालों को बुलाया, कहा वक्त करीब है, ये बताओ मैं चाहता हूँ कि आला हजरत के पहलू में मेरी भी कब्र निकाली जाए। लोगों ने कहा हुजूर कोई बात नहीं है, जो फला जानिब की दीवार बड़ी चौड़ी है उसको काट के थोड़ा अलग करेंगे और वही आला हजरत के पहलू में आपकी कब्र को बना दिया जाएगा। बात हो गई थे, 17 रमज़ान को हजरत का इंतकाल हो जाता है। अब जब उनके मुहिब्बीन मुरीदीन ने ये सिलसिला शुरू किया तो आला हजरत से सटी हुई जगह पर कब्र खोदना शुरू कर, जगह थी तंग थी जगह, इधर भी कब्र, बीच में एक जगह थोड़ी सी, तो सटी हुई जगह जब खोदना शुरू किया तो खोदते खोदते कोई हिस्सा जर्रा बराबर या थोड़ा सा आला हजरत की कब्र से खुल गया, जहां पर आला हजरत का मज़ार पाक अंदर जस्ते पाक है आला हजरत का। जब खुला तो वो रावी फरमाते हैं कि ऐसी अजीब खुशबू आई कि पूरे लोगों की मुशा में महक उठी, मुअत्तर हो चुकी। सब लोगों को पता चल गया कि आला हजरत की बारगाह से जन्नत की खुशबू आ रही है। आप कहोगे ये कैसे दावा करते जन्नत की खुशबू? मैं नहीं दावा कर रहा, मेरे नबी की हदीस पाक है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या दोजख के गड्ढों में से एक गड्ढा है। अब जो ईमान वाले होते हैं उनकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है, जो काफिर हैं, वहाबी हैं, देवबंदी हैं, शिया हैं, उनकी कब्रें जहन्नम के गढ़ों में से गड्ढा हुआ करती है। तो अब वो जो खुशबू आ रही जन्नत की आ रही, इससे पता ये चला कि आला हजरत सरकार भी जन्नती है, और जो आला हजरत के मसलक को इख्तियार किया है वो भी अल्लाह के फजल से जन्नती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी पर कायम रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ें।